Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Coastal plan. What do you mean here the coastal plan here? The Great Plateaus of India is surrounded by plains on all the sides. In the northern lies the Great Northern Plain and in the south along the east and west lies there a coastal plain here. There is important here. The East Coastal Plain, first of all here, East Coastal Plain extends along the coastal of Bay of Bengal for the Ganga Delta in the northern to be Kanyakumari in a south. The plain is bordered then to the western coastal plain, and this plain include to the deltas of the river Mahanadi and Godavari, Krishna and Kaveri here. Chilka is a pulicate and the Kolahuris lake are of famous lagoons of this planet. And this lake has been formed by the enclosing of a small part of the Bay of Bengal. Behind and sandbar, the lake Chilka is situated south of the delta of the Mahanadi. The lake of measuring 75 kilometers in a length, there is important here. The lake is a Pulicat is situated northern and Chennai city. The Koluris lake is situated between to the delta of Godavari and Krishna river. The east coastal plain is a fertile where a rice of there grow in a plenty. There is important here. The next best coastal plain here extends along the Arabian Sea from to the run of the Kutch in the northern to the Kanyakumari in the south. There is important here. Best coastal plain extending along to the Arabian Sea from the run of the Kutch in the north to the Kanyakumari in the south. Expect of the Gujarat plain. The western coastal plain are notable than to the eastern coastal plain from a southern Gujarat up to Mumbai, and this plain is a comfortably bordered but is a narrow southward of the Mumbai's is occasionally is rocky domes and hill are visible in a plain of Gujarat. The run of Kutch and the plain of Kathiawar is the plain of Gujarat are made up to the black soil. This coastal strip extending from about 500 kilometers between to Daman and northern and Goa is the south is called Konkan. Konkan, there is an important. And this region is highly distracted and the coastal line is indented or regularly with the several natural is herbivores. A number of small and seasonal rivers flow through this region. This is an important point. A number of small and seasonal regions flow through this region. The coastal Goa to be is a Mangalore is the called to the Karnataka coastal. That is important here. The coastal for the Goa to the Mangalore is the call to the Karnataka coastal, and this coastal is a Mangalore is about to the Kanyakumari is called there a Malabar coastal, and here the coastal plain is wider, and there are a number of long and narrow lagoons. There is important. There is a number of long and narrow lagoons. The 80-kilometer long Bevanus is example of this kind, and Kochi part is situated on the one of the lagoons. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है तटीय मैदान, देखिए तटीय मैदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम व्यू से हमेशा ही, तो इसको आपको अच्छे से करना चाहिए। तटीय मैदान, तो देखिए हमारे देश का विशाल पठार चारों ओर से घिरा हुआ है। हमारे देश का पठार जो है चारों ओर से घिरा हुआ है, और उत्तर में उत्तरी विशाल मैदान तथा दक्षिण पूर्व में पश्चिम तटीय मैदान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान क्या है, कहते हैं उत्तर में गंगा नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी के तट के साथ फैला हुआ है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि उत्तर में गंगा नदी के जो मुहाने हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ ये फैली हुई है। गंगा के जो है नदियाँ काफ़ी फैली हुई नजर आती है, और पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में यह अधिक चौड़ा है।
यानी देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़ा है और इस मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा सम्मिलित है। यानी इस मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा सम्मिलित है और इस मैदान में चिल्का और पुलिकट दो बड़े बड़े अनुपम लैंगून हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर दो लैंगून कौन कौन से हैं? चिल्का और पुलिकट। तो ये पूर्वी घाट में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इस झीलें जो होती है बंगाल की खाड़ी के थोड़े से जलीय भाग को बालू भित्ति के द्वारा गिर जाने से बनी हुई होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अगर चिल्का की बात करें तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और यह जो है 75 किलोमीटर लंबा भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर चिल्का के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है और ये जो है 75 किलोमीटर लंबा भी है। उसके पश्चात देखें तो पुलिकट झील की जो है चेन्नई नगर के उत्तर में है। तो पुलिकट झील जो है चेन्नई नगर के उत्तर में है और गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के मध्य में कलारू के झील है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। और पूर्वी तटीय मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। यानी पूर्वी तटीय मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ है और इसमें धान की फसल बहुत अच्छी होती है। तो ये देखा जाए तो धान के फसल के लिए ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, पूर्वी तटीय मैदान। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो है उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ ये फैला हुआ है। तो पश्चिमी तटीय मैदान भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और ये जो है कच्छ के तट से लेकर जो है दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के साथ साथ फैला हुआ है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ी है। कहते हैं दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई तक जो है पश्चिमी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है और पश्चिम की ओर काफ़ी संकरा हो गया है। यानी देखा जाए तो ये गुजरात से लेकर मुंबई तक पश्चिमी मैदान में काफ़ी चौड़ी है और दक्षिण की ओर काफ़ी संकरा हो जाती है। और गुजरात जो है कच्छ के रण तथा जो करवियावाड़ा के मैदान में कहीं कहीं जो है चट्टानी, ढीले और छोटी पहाड़ी दिखाई पड़ती है। गुजरात का मैदान काली मिट्टी से बना हुआ है और ये उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर की जो है तटीय भाग कोपन कहलाता है और यह कटा फटा है और इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ भी बहती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये काफ़ी कटा फटा है और इसमें काफ़ी छोटी छोटी नदियाँ जो है बहती है और यह कई प्राकृतिक जो है पोतशय है और गोवा से मंगोल तक ये तट के कर्नाटक तट कहलाता है। यानी गोवा से लेके मैंगलोर तक जो है तट के कर्नाटक तट कहते हैं। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक ये तट को जो है मलाबार तट कहते हैं और यह तटीय मैदान जो है कुछ चौड़ा भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। मलाबार तट में अनेक लंबे और संकरे अनुपम है और कहते हैं 80 किलोमीटर से भी अधिक लंबा जो है मेवानाडा ऐसा ही एक अनुपम है और इसी पर जो है कच्छुक बंदरगाह बसा हुआ भी है।